It's always a pleasure to come to Kolkata, and we generally, whenever I'm doing city tours and promotions, I start from Kolkata. Arakshan, we started from Kolkata. Damul, my first film, the very first public show was held here in Kolkata. So I have great fond memories. I have my teachers, masters, inspirational people, all from here. So love Kolkata and love being over here. Now, as far as Joy Gangajal is concerned, this is revisiting the police-society relationship, in growing, developing India after 12 years. For the character, because this story has got nothing to do with the story of Gangajal. This is a fresh story, fresh district, fresh problems, and the people, the powers in this district wanted to have someone, and one of the powers is being played by Manav Kaul, wonderful actor and a friend, who has played the character of Bablu Pandey, because he didn't want somebody in the district who would interfere with the goings on. So he and the minister and the other administrative and kind of business community, they all got together to get a female IPS officer who would be manipulated, who would be, turned around as they wanted. Unfortunately for them, Priyanka Chopra turns out to be a tough, righteous, and a no-nonsense kind of a cop. So she gets into confrontations, and by the time they realize they have got the wrong person, it is too late. And the whole issue of, the social, what kind of society we are living in today. If you want to arrest somebody, you have to answer 10 people. So these are things which form the crux of this drama, and the mob justice and the dilemma in which she finds herself. And my character is actually the character who is in between this whole system, who is, compromised with the system, works for everybody, tries to keep everybody happy, until, as Priyanka begins to instill the pride of Khaki in me, and an emotional turnaround because of some sort of betrayal happens. So I play the character of the DSP, B.N. Singh. Now you'll ask me, why did you start acting? My answer is, I never did stop acting. I was always acting. This time, I'm acting for you, which is the audience. Otherwise, I'm constantly acting for myself, because that's what life is all about. I had great time working with these wonderful actors. Very sure how I should play this and how I should see. And thank God we had this 1.5 months of sessions about the script, and we discussed everything. So actually on the set, we never ever actually talked about the role and anything. I was performing, he was performing, and I was having so much fun. Seriously, thank you. Amazing. Like when I was going through the trailer, that time you were actually looking like that local MLA of Bankepur, but now you're too sweet for that character. Hats off to Prakash sir that you actually changed him to from Manav to Pandey ji. That is amazing, sir. पता नहीं कैसे. That's what I pay him for. पता नहीं कैसे इन्होंने मेरे भीतर इतना सारा विलन देख लिया. मैं तो काफी स्वीट लड़का हूँ. Exactly. Well. विश्व परिषद है जो भी है, हम लोग सब तो मेरे ख्याल से मैंने जो रोल किया है वो मेरे उस पॉलिटिशियन का रोल है जिसको मैं एडमायर करता था कि मैं इस तरीके का पॉलिटिशियन देखना चाहता हूँ, या मेरे यंगर डेज में मैंने देखा है. तो मेरे हिसाब से बतौर अभिनेता बहुत सारा मेरे भीतर है जो मैंने देखा हुआ है, जो मैंने जिया हुआ है अपने आसपास.
और बस डिस्कशन में बिकॉज प्रकाश सर इज वेरी अवेयर ऑफ सोशल सिस्टम, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, सो आई जस्ट हैड लाइक लॉन्ग चैट्स विद हिम, बहुत सारी चाय और बहुत सारी कॉफी हमने पिए साथ में, और ही वाज वेरी श्योर, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था काम करना। Thank you so much. The next question. आपकी चॉइस प्रकाश जी पहले से थी बबलू जी की? बिल्कुल, जब मैंने मेरी सबसे पहली चॉइस इस फिल्म में थी वो निनाद कामत की थी, जो इनके छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसकी कास्टिंग करीब 6 महीने पहले मैंने कर ली थी। अभी लिख ही रहा था, जब देखा था उसको लगा था यही है बबलू पांडे का छोटा भाई। बबलू का जो चॉइस हुआ वो इनके काम को मैं जानता था, मैंने काम इनका देखा था, और जिस तरह का व्यक्तित्व मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं हमेशा कास्टिंग उस हिसाब से करता हूँ कि एक कल्पनाशीलता में एक व्यक्तित्व उभरता है और वो काम करेगा। बाकी अगर एक्टर है, एक्टर की कम्युनिकेशन समझता है, तो उनके साथ हम फिर काम करते रहते हैं, महीने 1.5 महीने उनके साथ हम बैठ के, जैसे मानव के साथ ही करीब 8-10 सेशन हमने किए होंगे, कई घंटे बैठ के, तो हम कैरेक्टर की को जो है उसका आविष्कार करते हैं, जो हमने लिखा है उसके हिसाब से। मैं हमेशा एक्टर को ये आज़ादी देता हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन कैरेक्टर आप बनाओ, आप टेबल पर लेकर के आओ कैसा कैरेक्टर होता है। और ये सभी लोग जो काम करते हैं, चाहे वो प्रियंका हो या निनाद हो या मुरली हो या मानव है, ये इन चीज़ों को लेकर के इतने खूबसूरती से काम करते हैं कि इसी वजह से सब डिफरेंट और सब एक कहते हैं वो हमारे यहाँ जो मछली और चावल का जो एकदम बढ़िया सा अगर सम्मिश्रण बन जाए ना, झोले मास, तो वैसा बन के आ जाता है। Thank you. Can we have the lady with the question, please? You need the mic? और उनके लायक जब भी कोई कैरेक्टर या रोल निकलेगा तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, सबसे पहले कास्ट करूंगा उनको। कभी कभी एक बार बीच में हुई थी, लेकिन अभी जैसे आया हूँ एयरपोर्ट से सीधा स्टूडियो गया, वहां से सीधा यहाँ आया हूँ, अभी थोड़ा समय निकलेगा तो बात करूंगा। मृणालदा को भी जाके मिलना है, अभी देखूं टाइम मिलता है कि नहीं। हाँ वो तो खैर, हाँ नहीं वो अलग बात है, वो हमारे पूज्य हैं, जब मैं आता था पहले सत्यजीत रे थे तो उनके घर भी जाता था, मृणालदा के घर जाता था, ऋतिक दा थे तो हम पढ़ाते ही थे हमारे इंस्टीट्यूट में, तो हमारे को सब इंस्पिरेशन रहे हैं ये लोग जी। नहीं हम तो इंस्टीट्यूट में थे ना, हम उसको हम निकल गए 1 साल के बाद। हम हाँ वो कैसे नहीं होंगे, वो थिएटर वाला छोड़ेगा क्या? Prakash ji, you talk about me from Indian Bangla channel. Yeah. Prakash ji. हाँ तो सेंसर जय गणेश के लेकर सेंसर बोर्ड का साथ आपका क्या हुआ, ये जानना चाहते हैं। 100 वर्ष हो गया इंडियन सिनेमा, सेंसर बोर्ड का जरूरत है अभी तक? सेंसर बोर्ड का जरूरत कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं रहेगा, ये जबरदस्ती का थोपा हुआ है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ समाज के अंदर में सेंसर करने की बहुत अच्छी ताकत है, हमको सबको अच्छा मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कायदा कानून बनाते हैं और कुछ पहला नीलानी जैसे साहब आते हैं, वो कायदा कानून को भी बहुत आगे बढ़ करके देखते हैं, उनका अपना खुद का कुछ एजेंडा हो जाता है। अभी जो हमारा पहला गंगा जल में था, जो बोलचाल की भाषा, आचार विचार की भाषा, टेक्सचर जो होती है हमारे लैंग्वेज की, वो उनको समझ में नहीं आता है। खैर डिटेल में ना जाते हुए, उनका जो है जो सर्टिफिकेशन था, हमको यूएस सर्टिफिकेट वो नहीं दे रहे थे, तो हमने उनको उनका चिट्ठी लेकर के हमने ट्रिब्यूनल में अभी अप्लाई किया है, और ट्रिब्यूनल में हमारा अपील 22 तारीख को सुनने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर इसके ऊपर इंसाफ होगा और जैसे हमने फिल्म बनाई है वैसे ही उसको दिखाया जाएगा। Thank you. Well,